How are you all? I hope you all are fine, enjoying your life. So, friends, today I am here to share a wonderful, I would say, secret tips and tricks with all of you so that you can also improve your communication skills, your spoken English skills, and so much more. So, hey guys, are you excited? Do you want to listen those tips and tricks so that you can also improve and enhance your communication skills? If yes, then this video is especially for you. Yes, you heard it right. This video is especially for someone who is looking for spoken English skills to improve spoken English skills and I would say and wants to improve communication skills and be a public speaker. So you are on the right place. Let me just start with the thing with the one question I would like to ask you that friends, are you really interested in learning English? If yes, then please every one of you just go in the comment section, write it over there. Yes, we are interested. Yes, I am interested. Then only I'll tell you those tips and tricks. I'm waiting for your comments. Great. So yeah friends, what I was telling to you, the way I have learned English, still I'm learning because this is just a language. Language means भाषा है, ये एक भाषा है. हम हमेशा ये थोड़ा मिसकंसेप्शन लेके चलते हैं. वी आर ऑलवेज स्केप्टिकल अबाउट that oh my god, in just one day we'll be becoming a fluent speaker, or in just 2 days, or in just 3 months, or in 4 months, or in 1 year or 2 years. No, every time you have to learn something or the other. Every time you have to update yourself with something or the other, because it's just a language at the end. Yeah, it's a language. भाषा ही है. हर बार कोई वर्ड्स आएंगे नए नए. हर बार कोई इडियम आ जाएगा. हर बार कोई फ्रेज आ जाएगी, फ्रेजल वर्ब्स आ जाएंगी, कोई न्यू सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे. तो ये ऐसा नहीं कि भाई कोई मैथ्स की तरह लाइक फिक्स्ड फॉर्मूला आया एंड हमने वो फॉर्मूला अप्लाई किया एंड क्वेश्चन सॉल्व, हैंस प्रूव्ड. नो, हियर द केस इज completely different. Yeah, you heard it right. The case is different. Here we need to constantly update ourselves with the new words if you really want to be that fluent speaker. If no, then basic English would also work for us. Like just like me, I'm not a native speaker right now, although I'm trying to becoming that. And one day, seriously friend, mark my words, I will become that too. It's my passion. I'm aiming for that. So if I'm aiming for that, I will be surely achieving it. So yeah friends, let's move to the tips and tricks. बहुत सारा ज्ञान दे दिया मैंने, बहुत सारा लाइक मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोल दिया अब तक. बिकॉज यू नो व्हाट फ्रेंड्स, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, आई डोंट नो, I am in so hurry that I have to speak this, I have to add on this particular thing. Oh my god, if I miss this one, so it's always like FOMO, fear of missing opportunity. So I don't want this to happen with me. So right now I have to speak in a calm way, in a calm and composed way, so that you guys would be able to understand it. And I just want you to get across with the things that I really want to show with you. So yeah, let us start with the tip 1 that I follow on my daily basis. The tip 1 is learning words. Yeah, you heard it right. The tip 1 is learning words. छोड़ दो दिमाग में, आप चाहे अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 1 वर्ड याद कर लो दिन का, 2 वर्ड याद कर लो, 3 याद कर लो, 4 याद कर लो, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग. मैं नहीं बताऊंगी कितने वर्ड्स, आपकी कैपेबिलिटी है. इट्स योर कॉल कम्प्लीटली हाउ मेनी वर्ड्स यू वांट टू लर्न, बट एटलीस्ट मेक इट अ हैबिट दैट in a day you are learning one word, at least one word. ऐसा नहीं कि अरे मेरे तो मन हुआ तो मैं तो 0 वर्ड्स करूँगा या तो मैं एक भी नहीं करूँगी. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स. इफ़ यू हैव keen interest on learning English, then please start from today itself. Yeah. तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, 1 वर्ड उठा लो, 2 वर्ड उठा लो, 3 उठा लो, 5 उठा लो, इट्स अप टू यू. हमने वो वर्ड लिया, सपोज द वर्ड इज कंसेंशियस. आज ही मैंने वर्ड सीखा, सीरियसली फ्रेंड. एंड इसका मतलब
इसका मतलब जो होता है रिस्पॉन्सिबल, केयरफुल, हार्ड वर्किंग. सो वी शुड कंसेंशियस with a career choice. We should be conscientious with our career, with our roles and responsibilities. We should be not skeptical. Skeptical means doubtful. जहाँ पे आप आपको मिसकंसेप्शन है, आप डाउट हो, यू आर एम्बिगियस, तो नहीं. तो ऐसे ही आप, मैंने कह रही हूँ आप एडवांस वर्ड्स लर्न करो. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द बेसिक वन, गुड, नाइस, बेस्ट, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग. आप कोई भी वर्ड से स्टार्ट कर सकते हो. बट थिंग इज दैट, एंड इवन इफ यू कैन स्टार्ट विद द सेगमेंट. सेगमेंट मीन्स मैं ऑल्दो मैं स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, बट फ्रेंड्स टू बी ऑनेस्ट विद यू, वाई आई एम अनेबल टू स्टार्ट, बिकॉज मुझे ऑडियंस नहीं दिख रही है. मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं वीडियो किसके लिए बनाऊँ, कौन मेरे वीडियोस देख रहा है, एटलीस्ट मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है. मुझे मेरी ऑडियंस नज़र नहीं आ रही है. अगर आपको सच में लग रहा है कि आपको इंग्लिश सीखनी है, प्लीज़ फ्रेंड्स write it in the comment section that yes Shivani, we really want to improve and enhance our spoken English, and you really want to improve, like learn spoken English. अगर yes होगा ना फ्रेंड्स, believe me, मैं आपको इंग्लिश सिखा कर ही रहूँगी. मैं भी सीख रही हूँ, बट मैं आपको सिखा कर रहूँगी. हम साथ में सीखेंगे ना, ये अप्रोच लेके चलोगे, साथ में सीखेंगे. हाँ, मैं एज अ ट्रेनर हूँ, मैं अभी काम भी कर रही हूँ इंस्टीट्यूट्स में एज अ ट्रेनर. बट हैविंग सेड दैट फ्रेंड, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं प्रो 1 हूँ, I'm a native speaker. No. I believe that there is always a room for improvement. A room for improvement means अभी भी कुछ जगह है जहाँ मैं कुछ नया सीख सकती हूँ, कुछ मैं नया अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकती हूँ. कुछ तो बाकी है, वो होता है ना, वो डायलॉग है, कुछ तो बाकी है. तो स्टिल इंग्लिश में कुछ तो बाकी हमेशा ही रहता है. तो वो सीखते जाओ, और फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि स्टार्टिंग में डे 1, अगर सपोज फ्रेंड्स आप आज से डे 1 स्टार्ट करते हो, इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर डे 1 फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, यू विल सी इट्स लाइक अ ट्री. इट्स लाइक अ ट्री. When you grow a plant, it's not become a tree instantly. It will not become a tree instantly. समझ में आई? You need to water it. You need to take care of it. You need to keep it in the place where it can get the sun raises. You need to take care of it in a proper manner. Same goes with English. If you are learning English, if you want to speak English, if you want to speak in English, what you need to do? You need to focus on 4 key skills. 4 key skills means reading. First one is reading, second writing, third is listening, fourth is speaking. Although in fourth मैंने जब skills बताई, मैंने fourth पर speaking mention करा, but speaking English है, sorry spoken English है, तो सबसे जो majority important part है वो कौन सा है? Speaking का है. As simple as that. तो स्पीकिंग का है फ्रेंड्स. तो ट्राई करो कि आप एटलीस्ट, सबसे पहला जो टिप था मेरा कि मैं क्या करती हूँ, एक वर्ड मैं पर्टिकुलर डे का लर्न करती हूँ. एटलीस्ट एक वर्ड तो मुझे करना ही करना है, विदाउट फेल. विदाउट फेल मतलब बिना रुके. जस्ट बी कंसिस्टेंट विद लर्निंग 1 word इन अ डे. ठीक है. सेकेंड टिप जो मैं फॉलो करती हूँ, लिसनिंग. फॉर लिसनिंग प्रैक्टिस, I usually listen to one particular story. It could be related to anything. It could be related to becoming an IAS officer. It could be related to like a movie or a series, or you can say anything. आप अपने जॉनरा का कुछ भी उठा लो. सिर्फ आपको एक चीज़, मतलब हार्डली अगर आप 5 मिनट सुनना पसंद करो, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग टाइम, इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, इवन इफ यू आर टू बिजी विद योर हाउस होल्ड चोर्स, जस्ट ट्राई टू टेक आउट एटलीस्ट 5 minutes. 5 minutes तो ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स. Just try to take out 5 minutes for yourself to learn in English, to speak in English. Just listen to that particular video. आपको सिर्फ सुनना है. ठीक है. थर्ड थिंग जो मैं करती हूँ, मैं वीडियो को सुनती हूँ, और फिर मैं कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि यार मैं क्यों ना इसके साथ साथ बोल भी लूँ. तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ, दिस इज़ कॉल्ड शेडोइंग प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एज अ लर्नर मैं मानती हूँ कि डे 1 से शुरू कर देनी चाहिए.
इवन इफ, हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, शेडोइंग प्रैक्टिस जो कि डे 1 से ही शुरू कर देनी चाहिए। इवन इफ़ यू आर अ बिगनर, इवन इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर बिगनर भी है तो भी आज से ही चालू करो, ज़्यादा नहीं। जैसे आपको कोई भी, आप बेसिक स्टोरी ले लो जो कि 4th और 5th स्टैंडर्ड की होती है, 6th स्टैंडर्ड की होती है। यू कैन लिसन टू दो स्टोरीज लाइक लॉयन मंकी वाली, अन्ना और क्रोकोडाइल, एंड ऐसी वाली स्टोरीज यू कैन लिसन एंड देन ट्राई टू इमिटेट द सेम सेंटेंस इन योर वर्ड्स, ट्राई टू इमिटेट द सेम टोन। इमिटेट मतलब नकल करना होता है बेसिकली, रेप्लिकेट मिमिक्री होती है ना सेम, वैसे ही इमिटेट। आप सेम वे मैं उस सेंटेंस को वापस रिपीट करो अपने वे में। जैसे मैंने बोला हाउ आर यू, सेम वे में आपको भी रिपीट करना है, हाउ आर यू शिवानी, एंड आई से या आई एम डूइंग वंडरफुल, यू से हाउ अबाउट यू, सेम you need to repeat. So this is what called imitation or shadowing. Seriously friend, trust me, this is one of the best tricks of learning spoken English, or you can say improving speaking in English. बहुत काम आती है एंड एंडलेसली काम आती है, एवरी डे काम आती है। बिकॉज मैं कभी कभी खुद स्टक हो जाती हूँ किसी किसी सेंटेंस को बनाने में, मेरे दिमाग में कभी कभी कोई वर्ड नहीं आता। इवन आई एम ऑल्सो समवन लाइक who not always, who sometimes run out of the words, and usually words don't come out of my mouth. I'm unable to speak a particular sentence, I don't know how to translate it. Then what thing can help you out in this scenario? If you are watching any particular video suppose, and you know how to frame this sentence, seriously believe me friends, वो आपके कहीं ना सबकॉन्शियस माइंड कह लो उसमें रह जाएगा। You will not run out of the vocabulary, run out of the sentence structure. Even if you are facing such situation in your day-to-day life, or even in your interview, or even in any kind of presentation, you can say, नहीं होगा आपके साथ, ट्रस्ट मी। जो 4th स्टेप मैं फॉलो करती हूँ इंग्लिश सीखने के लिए वो है, देखो मैंने फर्स्ट क्या बताया था, वोकेबलरी, मैंने लिसनिंग बता दिया, लिसनिंग के साथ साथ मैंने शेडोइंग प्रैक्टिस बताया कि मैं वो डेली करती हूँ। 4th थिंग मैं करती हूँ कभी कभी लाइक मुझे ना, एक्चुअली मुझे लिसनिंग तो बहुत पसंद है फ्रेंड्स, तो मैं लिसनिंग का पार्ट थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ अपने केस में। What I try to do, I usually whenever I'm eating food, I just try to watch a particular video or series, और क्या होता है ना ड्रामा सीरीज देखना है इंग्लिश में, तो मैं वो कर लेती हूँ। And then the next thing, earlier I was writing also because I'm not good at writing, तो मैं थोड़ा लिखने की भी प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मैं लिख सकूँ, बट मैं उसमें like I'm not a consistent one in writing. So if you really want to improve your spoken English, and if you want to follow the 4 aspect, you can start writing as well. जो भी सेंटेंस, हाँ मैं सबसे अच्छी ट्रिक बताती हूँ, मैं कभी भी कुछ वर्ड लर्न कर रही हूँ और मुझे उस वर्ड से रिलेटेड मैं सेंटेंस भी देख लेती हूँ, फिर मैं ट्राई करती हूँ सेंटेंस लिख के प्रैक्टिस करने का। होता ना, हम कोई भी स्कूल टाइम पे बड़े आंसर्स होते थे या फिर हमें पॉइंट्स लर्न करने होते थे, वी यूज टू राइट in a notebook, then we used to like revise them, brush up all the things. So I used to do the same thing when I'm learning English, actually English. So I used to follow the same method over here only. So if you are someone who learns by writing, you can do that as well, although it's up to you, completely your choice. हाँ ये तो मैं तो फॉलो करती हूँ, देखो टू बी ऑनेस्ट विद यू फ्रेंड्स, आई फॉलो द सेम मैथड। इफ यू वांट टू फॉलो यू कैन डू इट। द नेक्स्ट मैथड दैट आई यूजुअली डू, मैं इनिशियली तो इडियम्स और फ्रेजेस नहीं करती थी, फ्रेजल वर्ब एक्चुअली, क्योंकि मुझे पता नहीं था, बट नाउअडेज आई एम मोर हैबिचुअल ऑफ लर्निंग इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। तो मैं कभी कभी एक इडियम देख लिया मैंने, एक फ्रेजल वर्ब देख लिया, एंड इवन आई स्टार्टेड अपलोडिंग शॉर्ट्स वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग दैट फ्रेंड्स आई हैव लर्नड 1 इडियम इन अ डे। इट कैन बी ब्रेक अ लेग, मतलब आप किसी को बेस्ट लक लाइक गुड लक विश कर रहे हो, एंड इट कुड बी ब्रेक द आइज, देन इफ यू वांट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन यू कैन से लेट्स ब्रेक द आइज। तो ऐसे आप इडियम्स, अगर आपको लगता है कि मुझे स्टार्टिंग से ही पूरा कवर करके चलना है, यू कैन लर्न दोज idioms and phrasal verb as well. It's completely your choice. देखो लिसनिंग का हो गया,
रीडिंग का मैंने आपको बताया। हाँ, रीडिंग और स्पीकिंग अभी बच रहे। मैंने अभी तक लिसनिंग और राइटिंग कवर किया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू रीडिंग पार्ट। Although friends, frankly speaking, I'm not a reader by myself, but what I usually do whenever it feels like that, oh my god, because reading English is also essential, just like speaking in English, because when you are reading English, it improves our pronunciation, it improves our, I would say, enunciation as well, and it improves our fluency as well. Enhance, actually it enhance fluency as well. So because आप रीडिंग करोगे तो आप देखोगे कोई भी वर्ड में आप स्टक हो रहे हो, you can revise that word. Even you can go to the chat GPT and ask that the pronunciation of this word. Even you can ask dictionary as well. You can search the particular word. This dictionary will tell you the correct pronunciation. So in the same manner, you are improving your pronunciation. And if you are reading फॉर द फर्स्ट टाइम, ट्रस्ट मी फ्रेंड, बहुत बोरिंग लगेगा, मुझे भी लगा था एक्चुअली। एंड मैंने कभी रीडिंग करी नहीं एक्चुअली बचपन से। आई एम नॉट समवन हु यूज्ड टू रीड फ्रॉम माई चाइल्डहुड इटसेल्फ। आई एम नॉट अ गुड रीडर, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आई डोंट लाइक, या आई लाइक इट, बट आई हैव नेवर डन इट इन माई होल लाइफ टिल नाउ, बट रिसेंटली आई हैव टेकन दिस हॉबी। सो अब मैंने, हाँ, रीडिंग में कर लेती हूँ थोड़ा, लाइक मैं 10 मिनट्स या 5 मिनट्स प्रेफर, मतलब मैं हूँ नहीं रीडिंग में, तो मैं 5 मिनट्स 10 मिनट्स कर लेती हूँ। इफ़ यू आर अ गुड रीडर, यू कैन स्टार्ट इवन डूइंग इट मोर, ताकि आप देखोगे, आप सच में, अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि रीडिंग में बहुत अच्छा है, रीडिंग करता ही करता है, और लाइक बहुत सारी बुक्स है, एंड मे बी ही इज़ अ बिब्लियोफाइल और बुक वर्म, देन दे कैन टेल अस that why reading is so important in spoken English. Please guys do so if you are watching through this video. Next tip है जो कि सबसे crucial. We are like, so far we are just talking about spoken English and spoken English, but we have not covered like what things we can do to improve our speaking English or spoken English actually. तो मैंने अभी तक तो ये कवर किया ही नहीं, बट फ्रेंड्स जो भी अभी तक कवर किया वो रिलेटेड स्पोकन इंग्लिश से तो था, इजंट इट? ठीक, एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो फ्रेंड्स अब देखो, स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं क्या करती हूँ, सॉरी स्पीकिंग इन इंग्लिश के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एप्स यूज़ करती हूँ। रिसेंटली लाइक मैंने आपको पहले भी शेयर किया है 5 बेस्ट एप्लीकेशन टू इम्प्रूव टू टॉक इन इंग्लिश विद समवन, जो कि 5 एप्लीकेशन हैं जो कि कम्प्लीटली स्पीकिंग इंग्लिश को आई वुड से इम्प्रूव एंड इन्हेंस कर सकते हैं। दीज आर पियर अप हो गया, एंड एस फ्लुएंसी हो गया, सेकेंड वन एस फ्लुएंसी, थर्ड वन यू कैन इवन यूज़ हेलो टॉक, ड्यूलिंगो हो गया, ड्यूलिंगो भी सही है, बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया। इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, प्लीज़ ट्राई इट, एंड इफ समवन इज ऑलरेडी यूजिंग इट, प्लीज़ डू लेट मी नो हाउ इट इज़। एंड ड्यूलिंगो हो गया, आई हैव टोल्ड यू, एस फ्लुएंसी, हेलो टॉक एंड पियर हो गया। फिफ्थ वन इफ लाइक आप कोई भी जोश टॉक हो गया, अगर सही से चलता है, मैंने जोश टॉक भी यूज़ नहीं किया, नॉट यूज दैट एज वेल, बट हाँ स्पीकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। आजकल बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स निकाल दिए, CV हो गया, आई वुड से, एंड एलेक्स, कुछ ए से भी हो गया है कोई एप्लीकेशन, सो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट मेजॉरिटी जो 5 नंबर 1 मुझे अभी लगता है जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, इट्स पियर अप। Peer Up, सच में फ्रेंड, it's I would say one of the best platforms that I have ever seen till now, because it gives it provides you the free time, and there is no subscription. Even you can take the subscription, but they provide you the kind of free time, and you can talk to endless people, and it's completely free. There is no time restriction, so if you want to practice more than half an hour, you can go and just do it. बट फ्रेंड ट्रस्ट मी, अगर आप बिगनर भी हो रहे हैं, मुझे तो शर्म आती बात करने में, मैं कैसे बात करूँगा, मुझे सच में ऐसा लगता है, एंड व्हाट इफ लोग मजाक उड़ा देंगे, अगर सच में लोग हंसेंगे। नहीं फ्रेंड्स, वी ऑल आर स्ट्रेंजर टू ईच अदर। मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते हो, मे बी जो आप पेयर अप पे जिससे जुड़ोगे वो भी आपको कहाँ जानेगा, वो कौन सा आपका फेस देख रहा है, उसको कौन सा पता है कि अच्छा शिवानी ऐसी दिखती है, ओके वो ऐसा बोल वो सिर्फ सुनेंगे आपको। And trust me friend, this is one of the best way to enhance and improve speaking in English, or
स्पोकन इंग्लिश सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्पीकिंग पार्ट है। अगर स्पीकिंग पार्ट को छोड़ दिया तो जो भी कर रहे हो ना, ये वोकेबलरी हो गया, रीडिंग हो गया एंड लिसनिंग हो गया, कहीं इफेक्ट नहीं करेगा, कोई इफेक्ट इम्पैक्ट नहीं कहीं पड़ेगा इसका। बट इफ until or unless you are not speaking in English, but once you will start speaking in English, you will see whatever thing you have done so far na, it will automatically starts helping you. सीरियसली अगर जैसे आप बात करना चालू करोगे आपके दिमाग में वोकेबलरी दौड़ेगी, तो वो जो वोकेबलरी वाला पार्ट आप कर रहे थे वो हेल्प करेगा आपको। आप देखोगे कि आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर फ्लुएंटली बोल रहे हो, वो फ्लुएंसी आई कहाँ से, रीडिंग से आई थी वो फ्लुएंसी। अब आप देख रहे हो कि आपको कुछ मतलब कि सपोज करो योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल एंड समबडी सेइंग प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स, सो वो आप चैट बॉक्स में कैसे लिखोगे? अगर चैटिंग करनी है वो कहाँ से आया, वो इम्प्रूवमेंट कहाँ से आया, वो पार्ट आया रीडिंग राइटिंग से आया। इजंट इट ट्रू? यस। तो आपने देखा कि सारी चीज़ें जोड़ करके एट द एंड क्या बना, आपने स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट कर दी एंड आपने स्पीकिंग स्टार्ट कर दी, स्पीकिंग इन इंग्लिश एक्चुअली। इफ यू विल मिक्स ऑल द फोर थिंग, you will automatically become a native speaker, a fluent speaker, or someone who holds a good command over spoken English. See, इतना सिंपल तो नहीं कहूँगी है, for me it's not that simple because my background is, अब मैं बैकग्राउंड पे बात नहीं करूँगी, उसके पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको सच में सुनना है, जानना है मेरे बैकग्राउंड के बारे में तो ही, अदरवाइज नो। तो या अब देखो मैंने आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बता दी हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको फॉलो करना है, अगर आपको सच में इंग्लिश सीखनी है, इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश एंड यू हैव कीन डिजायर, इफ़ यू हैव कीन इंटरेस्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम टुडे। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सीरियसली फ्रेंड, किसका इंतजार है? कौन आके आपको मोटिवेशन देने वाला है? मैं तो आपको मोटिवेशन नहीं देने आई थी, बट मैंने अपना मेथड शेयर किया है। इफ़ यू हैव एंजॉयड, इफ़ यू हैव लाइक्ड the method, if you like the way I am learning English, you can also follow the same method. But to be honest with you friends, at the end I have not come here to give you so सारा ज्ञान। मैंने बस खाली जो बताया जो कि मैं एक्चुअल में फॉलो करती हूँ। वीडियो लंबा है पर प्लीज़ फ्रेंड वॉच दिस वीडियो till the end and you will find out what is the importance of this video, why I have created this video, why even I have I would say got the idea to shoot this video. Trust me friends, you will find out one by one and I'm just requesting you, please watch this video till the end, and if you have already watched it, please do let me know how it was. Have you learned anything? If yes, please do let me know in the comment section. And friends, yeah, I know I'm speaking faster, but yeah, let me just take a deep breath. Okay, now what I'm trying to say that I am going to wrap up this session. I'll see you with another one just like this one friends, trust me, just like this one only. And till then, take care friends, bye bye. But bye bye से पहले एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज से शुरू कर दो, आज से इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सेम टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हो। जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन वेयर यू आर फेसिंग ट्रबल, वेयर you are facing difficulty, what is stopping you? Actually, what is stopping you? Is it your confidence? Is it your fear? Is it your lack of, I would say, fear of judgment or fear of grammar? मुझे सब कुछ कमेंट में पता करना है, मुझे जानना है एक्चुअली आपके बारे में। थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा टाइम निकालो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो फटाफट। अब बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय।